الحاج محمد محمود یہ ہمارے آج کے جو سعیدہ فاطمہ، ساجدہ بیگم، رضوانہ بیگم، ناظمہ عزیز، چلیے جی آج لوگ بائی مستقبل داخلہ سکتا ہے وہ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے مستقبل میں جو ہے نا بہت ساری کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے مستقبل سے قابل سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے صدر جلسہ سیاست میں آپ کا سب ایڈیٹر بھی ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. محبوب ملت الحاج محمد محمود علی صاحب وزیر داخلہ، جو گناہ کو مصروفیات حالانکہ دوسرے مقام پہ جانا ہے اس کے باوجود بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ معلمات تلنگانہ کے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہیں. ہمارا جامعۃ المومنات کا مقصد یہی ہے کہ ایسے ورکشاپ ایک روزہ کیا جائے اور ممتاز مہمان کو بلائے ہیں. پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ، پروفیسر شاہدہ بیگم. اس کا مقصد یہی ہے کہ معلمات کے اندر، اس لیے کہ یہ معلمہ ایک طالبہ کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے جو اگر وہ اچھے انداز سے تعلیم دے. اور دینی مدارس کے معلمات کو ٹیچر ٹریننگ نہیں کرتے ہیں، اسی لیے یہاں ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ جامعۃ المومنات ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل سے یہ امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے. آپ جانتے ہیں شرعی عدالت منگل کے دن چلائی جاتی ہے، فری فتاوے دیے جاتے ہیں. لیڈیز مفتی بھی الگ ہے خواتین کی رہنمائی کے لیے. روزانہ خواتین آتے ہیں، اپنے مسائل دکھ درد پوچھ لیتے ہیں، چلے آتے ہیں. اور امیر شریعت کی موجود میں مردانہ دارالافتاء بھی موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ معلمات اتوار کو ڈسٹرکٹوں کو جا کر دینی خدمت انجام دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہفتے واری اجتماعات، ماہانہ واری اجتماعات اور خاص کر انجمن اصلاح البنات کے بھی تحت اجتماعات، فقہی مذاکرے منعقد کیے جاتے ہیں. امت مسلمہ کو جو چیز کی ضرورت ہے جامعۃ المومنات اس کی تکمیل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. وسائل ذرائع نہ ہو لیکن امت مسلمہ کے جو علماء، مشائخین، زعماء ہیں ان کی سرپرستی اس جامعہ کے ساتھ حاصل ہے. خاص بات صاحب محمود علی صاحب تو ہمارے بڑے کرم فرما ہے مدرسے کے حق میں، ہمارے حق میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے وہ جو جس کو چاہے عزت دیتا ہے. اور تلنگانہ اسٹیٹ کے قائم ہونے کے بعد آپ اندازہ کیجئے کوئی ریاست ایسی نہیں تھی کہ جہاں ڈپٹی دارت المومنات ایک ایسا مدرسہ ہے. جب میں یہاں پہلی بار آیا تو اسی دن سے مجھے اس مدرسے سے کافی محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کی تعلیمات میں سمجھتا ہوں میں کہیں نہیں دیکھا. میں بہت سے مدرسے گیا ہوں، جامعہ نظامیہ ایک بڑا مدرسہ ہے مگر میں اس سے یہ بھی کچھ کم نہیں ہے. دارت المومنات بھی جو ہے یہاں جس طریقے سے کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، میں شاید کہیں اور دیکھا ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہاں آنے پر. اور خاص طور سے ہمارے مفتی ڈاکٹر محمد مستان علی قادری صاحب بہت اچھی طریقے سے اس مدرسے کو چلا رہے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور آج ہمارے مہمان محمد قمر الدین صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں مائنارٹی کمیشن کے، اور ہمارے وحید بھائی صاحب جو ممبر ہے وقف بورڈ کے، اور محمد حسن الدین
सदर और हमारे डॉक्टर मोहम्मद मजहर भाई साहब, मुजफ्फर भाई साहब और हाफिज डॉक्टर साबिर पाशा साहब, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीनन इंसान को दिल से खिदमत करने की शौक होना चाहिए, वो मैं इन दोनों में देखा हूँ। उनका हमेशा यही कोशिश रही कि इस मदरसे को और हमारी कौम की खिदमत करते रहे, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना अब्दुल हामिद साहब और मखदूम साहब, मखदूम के साथ जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरे तमाम यहाँ पर बैठे हुए भाइयों और मेरे बहनों, दुनिया में अगर सबसे रेस्पेक्टेबल पेशा है या इज्जत जिसे बहुत ज़्यादा दी जाती है तो है उस्ताद का पेशा। उसके मुकाबले में कोई दूसरा पेशा नहीं होता। लोग बहुत से पेशे से वाबस्ता होते हैं, कोई तिजारत करते हैं, कोई दूसरे डिपार्टमेंट मुलाजमत करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी आते हैं, मगर जो तालीम देते हैं उनका सबसे ऊंचा मुकाम होता है, वही उनका मुस्तकबिल रोशन करते हैं उन बच्चों का। तो आज हमारी बहनें मौलिमात यहाँ पर आई हैं, उनके लिए आज तरबती कैंप जो है दारुल मोमिनात की तरफ से मुकर्रर रखा गया है, उसके लिए मैं इस इदारे को मुबारकबाद भी देता हूँ। और यकीनन जितने लोग दुनिया में तरक्की करें उन्हें उस्ताद अच्छा मिलने पर ही तरक्की, और हमारी बहनें यकीनन हमें सबसे ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है तो हमारे बहनों की है। और एक इंसान जब तालीम हासिल करता है तो खुद के लिए तालीम हासिल करता है, और एक हमारी बहन जब तालीम हासिल करती है तो कुल्ले की तालीम देने के बराबर है। तो सारे ख़ानदान को तालीम देना है तो घर की एक बहन को तालीम दीजिए। जिस घर में तालीम याफ्ता बीवी होती है वो बच्चे बड़े काबिल निकलते हैं, तालीम याफ्ता निकलते हैं। और दुनिया में तालीम के साथ दीनी तालीम की बड़ी अहमियत है। दीन के बगैर दुनिया नामुकम्मिल है, मगर दुनिया में भी बराबर हम जद्दोजहद करना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। यहाँ पर भी एक अच्छा मुकाम हमारा होना चाहिए। बगैर तालीम के इंसान ऐसा होता है, पत्थर के मानन होता है, जब उसे तराशा जाता है तो हीरा होता है। गोलकुंडा फोर्ट में जब गोलकुंडे की तामीर की जा रही थी, एक पत्थर मिला था, बड़ा पत्थर, लोगों ने उसको शुबा जाहिर किया कि इसके अंदर हीरा है। उसे तराशते तराशते जब हीरा तराशा गया मुकम्मिल तो सबसे दुनिया का कीमती हीरा बना। उसी तरह इन बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए तो हमारे देश का मुस्तकबिल बन सकते हैं, हमारी कौम का मुस्तकबिल बन सकते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग क्लासेस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। दारुल मोमिनात एक ऐसा इदारा है, मैंने कहा था कि अल्लाह से एक बार दुआ भी किया था, कई बार भी करता हूँ कि मदरसा नहीं एक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। दारुल मोमिनात आगे चलकर एक बड़ी यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की तरबियत की जाती है, तालीम दी जाती है, मैं समझता हूँ दूसरे मदरसों में उस तरह की तवज्जो नहीं है। रहा सवाल यहाँ के बच्चों के डिग्री के बारे में कहा गया, ज़रूर, क्योंकि जामिया निज़ामिया की भी डिग्री साबिक़ा में बंद हो चुकी थी। वो आलिम फाजिल की डिग्री जो रहती थी उसे इंटरमीडिएट के मुमसिल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। मगर तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब से कहा गया तो उन्होंने फ़ौरन वाइस चांसलर को बुलाकर कहा कि यहाँ के बच्चे दीनी मदरसों से जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, खास तौर से जामिया निज़ामिया के, उन बच्चों को इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो मैं इंशाल्लाह आपका जो मुतालिबा है मैं ज़रूर एक बार वाइस चांसलर को बुलाऊंगा और हमारे मस्तान शाह वली साहब को भी बुलाऊंगा, बैठ कर हम लोग बात करेंगे। आपके मदरसे को, क्योंकि तमाम दीनी मदरसों को इंक्लूड करना मुश्किल है, क्योंकि हर जगह उस स्टैंडर्ड की तालीम नहीं होती है। सारे मदरसों के बच्चों को अगर सर्टिफिकेट मिला, उसको यूनिवर्सिटी के मुमासिल इंटरमीडिएट का या मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना ये हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल कठिन है। और जब आपका मदरसा है, खास तौर से दारुल मोमिनात में जो बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से जो सर्टिफिकेट लेते हैं, उनका एजुकेशन भी जामिया निज़ामिया के बराबर है और उसी तरह यहाँ तालीम दी जाती है। इसके मद्देनजर रखते हुए ज़रूर मैं उस्मान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बुलाकर एक बार हम मीटिंग करेंगे, और जो हमारी वज़ीर तालीम है सबिता अहमदी, उनसे भी एक बार मैं बात करूँगा। हमारे सीएम साहब तो मुसलमानों को हर चीज़ देना चाहते हैं, वो चाहते हैं मुसलमानों को भी दूसरी कौमों की तरह तरक्की याफ्ता बनाना, उनका बहुत बड़ा मंशा है। तो इसलिए मैं, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी प्रोग्राम था 11 बजे, और मैं वहीद भाई से कल कहा था वो प्रोग्राम के बाद आऊँगा, मैं बोला नहीं, पहले दीनी मदरसे के प्रोग्राम को पहले शुरू करेंगे तो बाद में दुनिया में काम करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इमीडिएट पहले यहाँ पर जाएंगे। उनसे कहा कि थोड़ा देर भी हुआ तो आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरी कौमी तालीम के लिए जो हमारे मस्तान शाह वली साहब और साबिर भाई साहब और उनके साथ इतनी टीम काम कर रही है, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से यही दुआ करता हूँ
जामतुल मोमिनात इसी तरह तरक्की करते करते एक यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करें और हमारे बहनों को, हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। मोमिनात पर जो कि बहुत बड़ा मदरसा है और पुराने शहर का है, और हमारे मुफ्ती मस्तान शाह वली साहब जो यहाँ के सदर मोहतरम हैं, यहाँ पर जो टीचर्स ट्रेनिंग रखी गई है, जो मौलिमात हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर सरकारी जो भी स्कूल्स के टीचर्स होते हैं उन्हें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है, पर यहाँ पर दीनी मदरसे से बच्चे जो लड़कियाँ आलिम फाजिल का कोर्स हासिल किए उनके लिए एक ट्रेनिंग कोर्स रखा गया है, और आज उसका पहला दिन था इतना हो, तो मुझे भी बुलाया गया। मेरी जान से बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर से जामिया निज़ामिया के जो तालीम याफ्ता लड़के और लड़कियाँ हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से इंटरमीडिएट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी तरह यहाँ की जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और वो भी बहुत काबिल है, वही कोर्स हासिल कर रहे हैं। उनका डिमांड है कि उन बच्चों को भी, लड़कियों को भी, लड़कियों और लड़कों को वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट दें ताकि वो आगे तालीम हासिल कर सके और तालीम याफ्ता कहलाए। तो डेफिनेट हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से मैं नुमाइंदगी करूँगा, ऑलरेडी फाइल प्रोसेस में इंशाअल्लाह ताला इनका जो डिमांड है उसे पूरा किया जाएगा। और मेरी जात से ख़ास तौर से दारुल मोमिनात के तमाम इंतज़ामिया के जितने लोग हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से मदरसे गया पर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है तालीम का, जिस तरह डिसिप्लिन है और जिस तरह अच्छी तालीम दी जाती है, ऐसा मैार बहुत कम जगह पाया जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज जामुल मोमिनात एक मदरसा है और अल्लाह के फजल करम से कल ये यूनिवर्सिटी की तरह तरक्की करे और यहाँ से हज़ारों बच्चे तालीम हासिल करते हुए आगे बढ़े। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिस तरह एक पत्थर को तराशा जाए तो हीरा बन सकता है, और एक बच्चे को अच्छी तालीम दी जाए तो बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। और लड़कियों की तालीम लड़कों से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि लड़की जो होती है आज लड़की रहती है, कल माँ के रूप में है। तो माँ जब तालीम याफ्ता होती है और ख़ास तौर से दीनी तालीम याफ्ता होती है तो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे करती है और बच्चों को इस अच्छी से अच्छी तालीम देते हुए उन्हें होनहार बच्चों को तालीम याफ्ता बच्चे बनाती है। इसलिए हमारे पास लड़कियों की तालीम की बहुत अहमियत है, और जामतुल मोमिनात की तरफ से ये हमेशा लड़कियों की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी गई है, उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और जो उनका मुतालबा है इंशाअल्लाह